Namaskar, this is Professor Aman Agarwal from Indian Institute of Finance, and I'm here bringing you another webinar today on the essence of life and growth, which we schedule every Monday, Wednesday, and Friday from this month beginning. Prior to this, for 45 days, we're running it every day except for Sundays. Today, I have a special guest with me, a person I was very motivated by after reading his book on Rajniti, which he had written, which I got and presented when I met him at Jantantra TV for an interview which I came. So it's been a pleasure to have met Mr. Mishra. Mr. Mishra is currently the editor-in-chief of Jantantra TV. Before I introduce him, I would like to give the disclaimer. I would like to welcome all of you and Mr. Mishra to have joined us. We are conducting the meeting in a video platform, and hence we are, as a mandatory requirement, keeping the audios and videos of everybody off except for the speaker. So we will be opening up your videos and audios towards the end when you have question and answers. But till that time, kindly keep your videos and audios off. We will be going in that frame a little later. I'm happy to share also the fact that this is almost the 95th of the 94th webinar we are hosting in the last 2 months, and almost all except for 4 or 5 of them, every one of them is there on our YouTube channel called IF News and Broadcasting. The other declaration which I would like to make is that we are happy to, we would like to let you know that the points and the views presented here are those of the individuals and not those of the institutions they belong to, and they are their personal views. The prime objective of these webinar series on essence of life and growth was to induce positivity in life and growth and see how things grow up based on personal experiences. So I have my guests who come and share their personal life experiences of how they have seen the perspective of life and growth change over their span of about 30, 40 years of work life and another 20 years of personal life in their whole lifespan which they have. So now today I would like to begin, and with here I have my guest today, Mr. Vasindra Mishra. He is currently the editor-in-chief of Jantantra Television, which is a Hindi news national television in India. And I have had the privilege of being invited to his platform, his television, multiple times on economic issues. He has some very fine journalists who have been coming at my office, as well as some various fine anchors who have been interviewing me, including Sheetal Rajput and large number of others who have been doing a very good service to the nation by providing right kind of news, Hindi news, objective and right kind of news in Hindi language. Former to his being at Jantantra TV, he was the editor of National Network 18 Group in India, again for the Hindi broadcasting segment. He was also the editor for Zee Media, which was Hindi regional news channel, and also he worked with print media prior to joining Zee Media with Times of India, Hindustan Times, Amar Ujala, and National. And that's where, and I would suggest a question, because it's a beautiful book on Rajniti and how things have turned up, and everyone should read it. It's in Hindi, but I enjoyed reading it and in fact reviewing the book for the Journal Finance India, which we did last year. Now, to begin with, I have, as I said, Professor Mishra. Mr. Mishra, before I begin with my interview, I would request if you may kindly share a little insight of your own life, talking about how you have seen the perspective of life and growth change from the very childhood, from your being a boy of 6, 7 years of age, then becoming a teenage boy, and then going to college, and then work sphere, moving from print, getting married to television media, and the way you are today. If you can share a little bit of your insight of how you think that perspective of life has changed from time to time. I would request if you can keep it in English, because we have guests who come from all over the world. And so for that purpose, we have kept this program in English. But you are welcome to use Hindi connotations in between if you like. I would request if you can begin with that, and then we will go with my interview for about 8-9 questions which I have in mind. Thank you, Amanji, for such a lovely introduction about me and my career. Thank you very much, and I am extremely sorry for joining late as per our schedule.
I must say that Corona has given us a very good opportunity to think and realize once again about the life and growth. Because due to Corona, there are so many theories and philosophies have been changed. We have already witnessed that all religious places, worship places, sadhu vanished or disappeared due to this epidemic and pandemic. It means, as I feel, that there is one God, there is one temporal power who controls the whole universe. That means all the other things which we are witnessing and which so many people are professing in different ways about different religions, sects, are all uh, uh, I must say, it is my personal view that it all have diminished and disappeared before this pandemic. First of all, I want to uh, aware with you people that I belong from a very humble family. My parents were farmers. They were illiterate. They were not educated. I was the first person in my family uh, who came to Lucknow from a village and started my educational career. Every parent from my side, yeah, or which area I belong, wants that his or her son or daughter joins government service. But from day one, it was my dream that I want to do something, I want to contribute something for the betterment of the society. That's why, despite of the local pressure, family pressure, relatives pressure, I prefer to remain in academics. I prefer to remain in journalism. This is my short life history from a village to a state capital, Lucknow. In Lucknow, I graduated and post-graduated from Lucknow University. Then I did my research work in ethnic crisis in Sri Lanka, a case study of Tamil problem. A special mention was Rajiv Jayawardene Accord, which was concluded between the then Prime Minister of India, Rajiv Gandhi, and President of Sri Lanka, Jayawardene. You people all know about the accord and the fate of the accord, about Sri Lanka and Indo-Sri Lanka relations. Later on, I joined my journalistic career. I started from a English Evening, then joined National Herald, Times of India, Hindustan Time, and later on G Group, then Network 18 Group, and now I am heading an independent Hindi news channel, Janatantra TV. I had written 2 books, as Amanji had already spoken about it. I will not repeat again and to save the time. But my motive was just to feel the pain of the masses. My motive was just to contribute society in a very fair and fearless way. That's why I accepted this profession and I embraced this profession. Now we are facing 2 types of epidemics. One pandemics, another economic pandemics. Yeah, Mahamari, you can say epidemics. We have to gear up ourselves, our institutions, our mindset to meet the challenges. The whole world is helpless before these 2 pandemics and epidemics. And everybody
is clueless. No one knows what will be happen tomorrow and after tomorrow. Under the given situation, one should have to be positive in life. One should have to be detached in materialistic terms. One should have to be believe in karma, a duty, and one should have to believe in God. When everything is failed, when nobody is able to identify to cure these epidemics, only God can save us, and only our thoughts, our positive attitude, our willpower can save us from these epidemics. Keeping these facts in mind, I regularly come to my office. I regularly do all my routine job as I was doing in the past, as I was doing in the pre-epidemics time, and without any fear and hesitation, my whole team is on the job. I am leading from the front, and the whole young team is behind me. And I believe that a day will come when we will conquer these two epidemics with our positive thinking, with our beliefs, with our optimistic approach, and with our willpower. This is my brief. Thank you for that insight. But I would request if you could also share, as to how the perspective, how do you feel about life or growth? वो perspective change हुआ है आपके बचपन से अब तक, जब आप बच्चे थे, बड़े। अमन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति अपने लाइफ की प्रायोरिटीज खुद तय करता है, और जिस तरह के हम अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं लाइफ की, उसी तरह के फिर हम जो लाइफ का जिस तरह के हम अपने पास प्रायोरिटी तय करते हैं लाइफ की, हाँ जी, उसी तरह का फिर हम एक रोड मैप बनाते हैं उस अपने प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए। तो मैंने बचपन से ही सोच रखा था कि मुझे उस जो मैड रेस है ग्रोथ का, जिसको कि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें कि वैल्यूज नहीं होता है, एथिक्स नहीं होता है, इथॉज नहीं होते हैं, राइट रंग का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हमको उस रास्ते पर नहीं जाना है। मुझे भी ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ इज लाइफ। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस फिलॉसफी कि बिना ग्रोथ के लाइफ नहीं है और बिना लाइफ के ग्रोथ नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। लेकिन ग्रोथ मस्ट बी वैल्यू ओरिएंटेड, ग्रोथ मस्ट बी प्रो पीपल, growth must be with ethos, with human dignity। सिर्फ ग्रोथ लेके तो हम रोबोटिक एरा में पहुंच जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। तो एक इंसान को संवेदनशील होना चाहिए। द पर्सन शुड बी सेंसिटिव, द पर्सन शुड बी कंपैशनेट, द पर्सन शुड बी हेल्पफुल towards the needy people, the person should be। इस मामले में मैं लॉर्ड बुद्धा का वो चीज आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, कि लॉर्ड बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी, जो कि बाद में खुद डिजनरेट हो गया, उनके फॉलोअर्स ने ही इतने उसमें विवाद खड़ा कर दिए कि पूरी फिलॉसफी डिरेल होती दिखाई दे रही है। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने जिस तरफ इशारा किया था हम सबको, उसमें यही था कि अपरिग्रह की बात किया था भगवान बुद्ध ने, कि हमको उतना ही धनोपार्जन करना है जितने से कि मेरी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन का संचय या धन का कलेक्शन वो एबरेशंस लेके आता है, वो इविल्स को इनवाइट करता है, वो 10 तरह के बुराइयों को इनवाइट करता है। तो इसलिए हमको धनोपार्जन करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, और जब उससे ज्यादा बच जाए तो देश के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारे देश में और पूरी दुनिया में CSR की चर्चा होती है, और CSR एक्टिविटीज के जरिए हर कंपनीज अपने प्रॉफिट का, अपने ग्रोथ का कुछ परसेंट CSR एक्टिविटीज पर खर्च करती हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर उसका अप्रेजल किया जाए तो अब उसमें भी वह ट्रांसपेरेंसी, वो ऑनेस्टी देखने को नहीं मिल रही है मेजॉरिटी कंपनीज की तरफ से। वो फंड डाइवर्ट करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, अपने पॉलिटिकल बॉसेज को खुश करने के लिए CSR का फंड उनके उसमें डोनेट कर देते हैं। ये जो पर्पज था CSR का या भगवान बुद्ध के जो उस प्रीचिंग का, वो सर्व नहीं होता है। अगर आप इस्लाम में जाएंगे, इस्लाम में भी इसी तरह की बात कही गई है कि आप अपने आमदनी का कुछ हिस्सा आप नीडी लोगों के, जो हैव नॉट्स हैं, जो वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो इकोनॉमिकली स्टार्व्ड हैं, उनकी मदद में खर्च करेंगे। इस्लाम में भी ये बात कही गई है। प्रॉफेट साहब ने कहा था कि अगर मेरा पड़ोसी भूख से सो रहा है खाली पेट, तो सबसे ज्यादा पाप मुझे लगेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर हमारे पास अगर 2 रोटी है तो पहले हम अपने पड़ोसी का पेट भरें, उसके बाद हम अपना पेट भरें। ये है इस्लाम, ये है बुद्धिज्म, ये है हिंदुइज्म। चाहे किसी भी इज्म की बात करिए, किसी भी रिलीजन की बात करिए, उसमें दरिद्र नारायण की बात की गई है, डाउन ट्रॉडेंस को मदद करने की बात कही गई है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप गरीबों का शोषण करिए, अपाहिज जो नीडी लोग हैं उनकी सेवा मत करिए। वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, कहीं भी हो। जितना मैं समझ पाया इतने करियर में और जितना मैं पढ़ पाया, तो मैं आप सबसे यही शेयर करना चाह रहा हूँ, इट इज माय हम्बल सबमिशन, कि लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्शन, लाइफ शुड बी फ्रूटफुल। और फ्रूटफुल तभी होगा जब हम खुद को के अलावा अपने आसपास के लोगों को भी सुखी रख सकें, उनको खुश देख सकें, उनकी खुशी वापस ला सकें। अभी हाल में पेंडेमिक के चलते जिस तरह का नजारा पूरे इंडिया में देखने को मिला है, करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल निकल पड़े अपने बच्चों को अपने कंधे पर लेके, बूढ़े माँ बाप को अपने कंधे पर लेके। ये इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद शायद इतनी बड़ी तादाद में इतने लाचार, हेल्पलेस लोग पहली बार देश की सड़कों पर दिखाई दिए हैं, इंडिया की सड़कों पर दिखाई दिए हैं। ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह का जो दर्द था, जो हम सब ने महसूस किया है, जो भी थोड़ा भी संवेदनशील है, जो भी जिसके अंदर भी थोड़े भी सेंसुअसनेस है, सेंसिटिविटी है, every person is pained with the agony and miseries of the migrant workers। और हम सबको कोशिश करना चाहिए इस दिशा में कि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की कैलेमिटी आती है, चाहे नेचुरल हो, अननेचुरल हो, मैन मेड हो या टेक्नोलॉजिकल डिसास्टर हो, तो उसमें हमको इस तरह की एगोनी, इस तरह की पेन, इस तरह का सफरिंग, इस तरह की मिजरी दोबारा देखने को ना मिले, ये मेरा मानना है। और हम सब लोग जो कि मानते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग सक्षम लोग हैं, हम लोग के अंदर भगवान ने सोचने और समझने और उसकी रीजनिंग और लॉजिक की एक क्षमता दे रखी है। तो हम सबकी एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड एडुकेट आवर सोसाइटी, वी शुड एडुकेट our brothers and sisters, we should educate our elders to be compassionate, love and love each other। ये मेरा मानना है। ये आपने ठीक कहा इसमें, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो है, जो लाइफ का स्तर है, कैसे हम काम करें, कैसे करें, लोगों की हम कैसे भलाई करें, सेंसिटिव रहें, कंपैशनेट रहें और हेल्पफुल रहें, जो एसेंशियल हैं, बहुत जरूरी हैं। एक मैं पढ़ रहा था कि लाइफ और ग्रोथ के अंदर बैलेंस करने के लिए
इंसान को अपने अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आपके विचार में क्या ये जरूरी है, सच है? आपको अपनी बिल्कुल सच जिंदगी है, से क्या लगता है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। मैं आपको बताऊं, मैंने धीरू भाई अंबानी के बारे में ढेर सारा स्टडी किया था। मैं करीब 5 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा रहा, उनका जो मीडिया ग्रुप है उससे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफिसेज में अगर आप जाएंगे तो उसमें धीरू भाई अंबानी के अलग अलग कोट्स उन लोगों ने फ्रेम करके लगा रखे हैं अपने ऑफिसेज में। एक जगह उन्होंने लिख रखा था, लाइफ इज ग्रोथ। मैंने सोचा कि एक व्यक्ति जो गुजरात के एक छोटे से टाउन से उठ के और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना रोजगार पाए हुए हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं, उसकी एक फिलॉसफी है। लेकिन धीरू भाई अंबानी के परिवार के लोगों को हमने 2 मौके पर देखा। एक मौका था जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई थी और उनकी एसेज को विसर्जित करने के लिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज में वो लोग आए थे गंगा में विसर्जित हाँ करने। जी। मुकेश भाई से लेके पूरी फैमिली थी, सारे उनके क्लोज रिलेटिव्स थे। हेलो। वहां मीडिया के लोग कोशिश कर रहे थे कि उनके सारे जो धार्मिक अनुष्ठान थे उसका कवरेज कर हाँ जी। रहे लोग वहां जुटे हुए। मुझसे मुकेश भाई ने बुला के कहा कि वासिंद्र जी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा जो पूजा पाठ का अनुष्ठान है, क्योंकि ये लोग इसका आप खुद मीडिया में अगर आप इसको शूट कराएंगे अपने इमेज के लिए तो हमारे अपने अपने। हाँ जी। हेलो, आपको आवाज आ रहा है मेरा, मिस्टर मिश्रा? हेलो। मिस्टर मिश्रा, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें, बिकॉज अनम्यूट हो गया आप, पता नहीं कैसे। हेलो। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया है अमन हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ, प्लीज गो और अहेड। हाँ जी, अब ठीक है। बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा तो अच्छा। मुकेश भाई से जब मैंने कहा कि मीडिया हम्म। पर्संस की रिक्वेस्ट है तो हम लोगों को अपना इन हाउस शूट भी बंद करना पड़ेगा, हाँ जी। उन्होंने बगैर 1 सेकंड लगाए उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपनी यूनिट भी विड्रॉ कर लीजिए। हाँ। और जिस तरह से वो अपने परिवार के साथ आए थे, उनकी सिंप्लिसिटी और उनके परिवार की, उनकी मदर, उनकी सिस्टर्स, उनके ब्रदर इन लॉ, उन लोगों की या मिसेस खुद मुकेश अंबानी, नीता जी की जो सिंप्लिसिटी थी, वो देख के लगा कि एक व्यक्ति जो फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ है, लोग दिखावा करते हैं छोटी छोटी बात में, हाँ जी। और लोग इतने शासन साधन संपन्न होते हुए आने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं उन लोगों के बारे में जिसको कि जैसा कि आपने बोला कि किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है ग्रोथ में और लाइफ के हाँ प्रायोरिटीज जी। में। आपको सुन के ताजुब होगा कि मुकेश भाई चाहे जितना बिजी रहे, जब तक उनके बच्चे छोटे रहे हैं, वो शाम को हम्म। जब ऑफिस से घर जाते थे तो अपने बच्चों की कॉपी का होमवर्क चेक करते थे हम्म। कि स्कूल से क्या उनको टास्क मिला है, और आधा 1 घंटा वो बच्चों के साथ गुजारते थे। और डिनर हम्म। ज्यादातर उनकी कोशिश यही होती थी कि अगर वो मुंबई में है तो बच्चों के साथ ही डिनर करते थे। हम्म। तो ये जो फैमिली बॉन्डिंग है, ये बचपन में हम लोगों को जो था अपने भारत में, इंडिया में, वो कई तरह हाँ जी। के डिसिप्लिन उसमें शामिल था। जब आप एक साथ बैठ के पूरी फैमिली के साथ खाना खाते हैं तो दिन हाँ जी। भर के चीजों का एक तरह से लेखा जोखा वहीं एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हैं।
हाँ जी, दूसरा, बड़े छोटे के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक ड्यूटी, उसका भी एहसास होता है, जो हाँ कि जी, न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं रहता है। तो हाँ अब हाँ, मेरा जो मैं समझ पाया कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वैल्यूज को छोड़ दें। इकोनॉमिक करेक्ट। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से मैकेनिकल बना दें। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हम रिलीजियस भी रह सकते हैं, हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा सकते हैं, हम अपने हाँ जी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो ना तो वो अपनी हम्म, फैमिली के साथ ऑनेस्ट रह सकता है, ना अपनी हाँ जी, आइडियोलॉजी के साथ ऑनेस्ट हो सकता है, ना अपनी ड्यूटी के साथ ऑनेस्ट हो सकता है, और ना सोसाइटी और अपने नेशन के साथ ऑनेस्ट हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक ये जो चीज आजकल जो माहौल चल रहा है उसको जो है, पर अगर हम देखें पिछले 100 सालों में बड़ी अनसर्टेनिटी रही है, कभी न किसी चीज की, कभी किसी चीज की, कभी तो जैसे आपने का जिक्र भी किया वॉर का, या कोई मैन मेड डिजास्टर का, या नेचुरल डिजास्टर का, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, अनसर्टेनिटी लगी रहती है। जब ऐसी अनसर्टेनिटी बनी होती है तो हम अपनी लाइफ को कैसे सेलिब्रेट करें? आपके विचार में आप अपनी लाइफ कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अमन जी, मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा कि हर व्यक्ति हाँ, को अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है हाँ, और अपना टारगेट तय करना पड़ता है। अगर बिल्कुल हमने ठीक अपनी है। प्रायोरिटी यही बनाई है कि मुझे 5 लाख पर एनम का इनकम चाहिए, और 5 लाख अगर हमने एक साल में कमा लिया तो मेरी हाँ, सारी रिक्वायरमेंट और नीड पूरी हो जाएगी और हम उसको हाँ, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने उसको लिमिट नहीं रखा और हाँ, 5 लाख मिल गया तो 10 लाख के बारे में सोचने लगे, तो हाँ, हम ना तो कभी अपने को खुश रख पाएंगे, ना हम अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर हाँ, पाएंगे, ना हम अपने परिवार और अपने दोस्तों को खुश रख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर सेल्फ हाँ इम्पोज्ड जी, डिसिप्लिन रखें, और जब हाँ, तक ये रहेगा तब तक हम जो भी रहेगा उसी में सेलिब्रेट कर सकते हम्म, हैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी हाँ, इंडियन लिगेसी है, वो तो यही हाँ, सिखाती है। आप याद करिए, जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए द्वारका, तो सुदामा तो एक गरीब ब्राह्मण थे, जाने के पहले उनको काफी संकोच हो रहा था कि हाँ, हमारे जो दोस्त हैं वो तो राजा हैं, त्रिलोक के मालिक हैं, उनसे हम मिलने जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं। और अपने पुराने हाँ, समाज में परंपरा रही है कि अगर आप किसी अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। हाँ जी, तो उनके पत्नी ने थोड़ा सा चावल की एक गठरी बांध के वो दे दिया था कि ठीक है, आप भी हाँ, लेके जाओ, अपने दोस्त को दे देना। और जब वो वहां पहुंचे राज दरबार में और कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई, तो संकोच में वो गठरी खोल के उनको दे नहीं रहे थे, हाँ, जो संक्षेप में अगर हम कहानी की बात करें। हाँ, लेकिन उसी चीज को, उसी चावल की एक मुट्ठी चावल को देखकर कृष्ण जितना खुश हुए और जितना उनको सम्मान दिया, हम्म, उसे मैसेज क्या जाता है? मैसेज यही जाता है कि अगर हम गोल्ड डायमंड लेके जाएं, उससे इज्जत नहीं हम्म, मिलती। हम्म, हमारे अंदर प्रेम भाव कितना है। हम्म, अगर हम कोई चीज अर्जित किए हैं तो उसका माध्यम क्या है? वो हम्म, मेरा जो अर्न की हुई चीज है, वो सही रास्ते पर चल के अर्जित की हुई चीज है कि गलत हम्म, रास्ते पर चल के अर्जित की हुई चीज है? अगर सही हाँ जी, रास्ते से अर्जित की हुई चीज है तो उसको खर्च करने में, उसको एंजॉय करने में मुझे हाँ, ज्यादा वो मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। और अगर हाँ, उसी को हम गलत तरीके से कमा के रखे हैं तो मुझे रात में सोने के पहले नींद की दवा खानी पड़ती है, हाँ, नहीं तो नींद नहीं आती है, चाहे जितना हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक कह तो रहे ये हैं। डिपेंड करता है कि हम अपने को कितना आत्मानुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं और हाँ जी, अपने जीवन की प्रायोरिटीज तय करते हैं। और हाँ, लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्शन, एक्शन पैक्ड होना चाहिए। लाइफ शुड बी शॉर्ट बट फुल ऑफ एक्शन। जैसे कोरोना ठीक के कह रहे हैं। लेके बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, और कोरोना को लेके सबसे ज्यादा वे लोग डरे हुए हैं जिनके हम्म, पास सबसे ज्यादा रुपया पैसा है, जिनके पास हम्म, सबसे ज्यादा साधन है, वही हाँ जी, हेल्पलेस हैं, वही लाचार हैं। हाँ, अभी कल परसों बॉम्बे से एक व्हाट्सएप मैसेज ट्रेवल हो रहा था,
आप लोगों तक भी गया होगा कि मुंबई में जो वहाँ डोमेस्टिक हेल्प है, अब उन लोगों ने हाँ, डिमांड करना शुरू किया कि हम आपके घर में तब काम करेंगे जब आप हमको कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। हाँ, अब देखिए 360 डिग्री चेंज हो गया सोशल वैल्यूज। पहले हाँ, हमारे आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आता था तो हम उससे सवाल पूछते थे कि भाई साफ सफाई से आए हो, कोई तुमको खांसी जुकाम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब उल्टा हो रहा है, हाँ, अब वो डोमेस्टिक हेल्प आपसे पूछ रहा है हम आपके गेट के अंदर इंटर तब करेंगे जब आप मुझे दिखाएंगे कि आपकी फैमिली और आपके लोग कोरोना निगेटिव हैं, हाँ, पॉजिटिव नहीं है। हाँ, ये है, तो ये चेंज हो रहा है, देखिए किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है। ठीक है। इसलिए जरूरी है कि जो भी मिले जीवन में उसको लेकर संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मिले उसके प्रति गॉड को, आप जिस भी भगवान को मानते हो, देवी देवता जिस भी रिलीजन को मानते हो, उसके हाँ, प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और जो भी हाँ, लाइफ है, जितने दिन की भी जिंदगी बची है, उसके लिए भी गॉड के प्रति कृतज्ञ हाँ, होना चाहिए कि आपने मुझे जो जीवन दिया था और हाँ, मुझे जो सामाजिक दायित्व दिया था, हमने जितना कोशिश की अपनी क्षमता भर, हाँ, वो आप स्वीकार करें। जो नहीं कर पाए वो मेरी क्षमता के बाहर था, और मैं जितने हाँ, दिन की लाइफ है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, वो आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी के एक राइटर थे लॉन्ग फेलो, H.W. लॉन्ग फेलो, उन्होंने लिखा करेक्ट। था लाइफ शुड बी शॉर्ट बट फुल ऑफ एक्शन। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये है बिल्कुल ना? ठीक कह रहे हैं आप। 100 साल की नहीं, जिंदगी हो और 4 सर्वेंट सुबह से रात तक उठाएं और पानी पिलाएं, इससे बढ़िया हाँ है कि लाइफ शुड बी शॉर्ट फुल ऑफ एक्शन। और जितने दिन जिंदा रहे कुछ ऐसा काम करके जाइए, छोड़ के जाइए कि आपके नहीं रहने के बाद लोग आपको याद करें। हाँ जी। ये है। एक जो चीज मैंने और पढ़ी, और मेरे काफी सारे जो स्पीकर से पिछले 2 महीने में उन्होंने कहा कि फोकस किया कि जो पॉजिटिविटी है वो इस तरीके से भी लाई जा सकती है जीवन में, कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दें, मेडिटेशन को बढ़ावा दें, सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा दें। आपका भी विचार है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ती है? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ, और विद ऑल रिस्पेक्ट एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल हाँ आवर जी, हाँ जी, रिलीजियस पीपुल, मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ जो लोग की बड़ी बड़ी बातें करते थे, हजारों लाखों करोड़ का उन लोगों ने हाँ जी, अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है व्यावसायिक, चाहे वो श्री हाँ, श्री रविशंकर हो, रामदेव हो, जग्गी वासुदेव हो, या इस तरह के सो मेनी पीपुल। आज वो लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं सड़क पर। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो तो स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने तो एक तरह से अपनी इंद्रियों पर कब्जा कर रखा है, अपने हाँ, सेंसेस पर। उन्होंने तो अपरिग्रह, परित्याग की शिक्षा ली हुई है, इसीलिए उन्होंने फैमिली लाइफ छोड़ी। तो हाँ, आपने फैमिली लाइफ छोड़ा कि आप डिटैच रहना चाहते हैं माया मोह से, हाँ, और उसके बाद आपने किया क्या? लाखों हजारों करोड़ रुपए का अंपायर आपने खड़ा कर लिया। उस एम्पायर को बचाने के लिए फिर आप मैनिपुलेट करते हैं पार्टी इन पावर्स से, फिर आपके ऊपर 10 तरह के आरोप लगते हैं, कभी हाँ टैक्स जी, इवेजन की बात आती है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है। तो हाँ जब जी, यही सब करना था, अगर यही स्पिरिचुअलिटी है और यही अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते हम अपने को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो हाँ जी, फैमिली लाइफ छोड़ने की जरूरत क्या थी? हाँ, तब आप परिवार में रह के यही सब करते। आपसे हमसे बढ़िया तो एक किसान है गांव का, जो सुबह जाता है 8 घंटा कमर तोड़ मेहनत करता है, रात में आता हाँ, है खाना खा के चैन की नींद सोता है। हाँ, न उसको ऑटोमास लगाना पड़ता है, न मॉस्किटो नेट लगाना पड़ता है, उसको आराम से नींद आ जाती है खुले आसमान के नीचे। हम लोग 10 तरह का अरेंजमेंट करते हैं तब भी साउंड स्लीप नहीं आता है। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, जिसके लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य बना के भेजा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहते हुए अपने उन कर्तव्यों का पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करिए, उसकी निर्वहन करिए। सबको छोड़ के और फिर उपदेश देना, ये तो बहुत आसान है। और फिर लग्जरी गाड़ियों में बैठना, चार्टर लेके घूमना, आइलैंड खरीद लेना और वहां सारे उस भोग विलास की चीजें जुटा के रखना, जिसको छोड़ के आप इस रास्ते पर आए थे। तो आप संतुष्ट कहाँ हैं? आपके अंदर पॉजिटिविटी कहाँ है? आपके अंदर तो लस्ट है, आपके अंदर तो बेचैनी है, आप डेस्परेट हैं कि आप अपनी कंपनी को 2000 करोड़ से 4000 करोड़ पर ले जाना चाहते हैं। आप यूनिलीवर को टक्कर देना चाहते हैं, आप मुकेश अंबानी को टक्कर देना चाहते हैं। तो आप में और मुकेश अंबानी में फर्क क्या है? तो जो काम करिए, डुअल फेस नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। वो गुलजार ने लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा गुलजार को, कि इंसान एक चेहरे पर कई कई चेहरे लेके लोग घूम रहे हैं, चेहरे के अंदर चेहरा छिपा के। वो नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर ये गट्स होना चाहिए कि आप डंके की चोट पर बोल सकें कि आपका ये भरोसा है, आपकी ये बिलीफ है, आप इस चीज को ठीक मानते हैं, इस चीज को खराब मानते हैं। हम हर उस आइडियोलॉजिकल कमिटेड लोगों को अच्छा मानते हैं जो कि एक क्लियर आइडियोलॉजी को लेके कमिटेड है, चाहे राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, किसी भी दल का। हम उस इंसान को अच्छा नहीं मानते हैं जो हिपोक्रेट है, जो कहता है फ्री थिंकर है। फ्री थिंकर कोई हो ही नहीं सकता। फ्री थिंकर तो एक परिवार में 4 लोग हैं, वो नहीं है। 4 लोगों की 4 फिलॉसफी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी अमन जी। एक चीज बताएं जी कि आपने तो इकोनॉमी को देखते हैं, पॉलिटिक्स भी देखा है हिंदुस्तान में, और इतने सालों से आप उसको पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और आपने उतार चढ़ाव भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का भी उतार चढ़ाव हो रहा है, पहले भी बड़ी सारी चीजें हुई, वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, IT बबल बर्स्ट हुआ, स्कैम हुए हैं बहुत सारे, हिंदुस्तान में भी बाहर भी। उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, जिंदगी का एक हार्ट बीट की तरह एक नाता है उसका। पर हम जिस तरीके से देखते हैं आगे के नजरिए को, किस तरीके से पॉजिटिव देखते हैं, हम इसको मानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटिस्टिक चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो अब आगे आने वाले समय में। आपको कैसा लगता है कि अगले आने वाला 6 महीने से 1 साल कैसा रहेगा? एक आम इंसान। देखिए, अगर अमन जी, अगर हम आपकी लैंग्वेज में बात करें, आप जैसे एक्सपर्ट्स, आप लोग प्रोफेशनल्स के हैं, आप लोग, तो आप लोगों के नहीं, लेकिन एज अ लेमैन मैं आपसे ये कह सकते हैं कि भारत की जो आत्मा है ना, और भारत का जो DNA है, वो एकदम डिफरेंट है। उसकी तुलना हम यूरोप और एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मुल्कों से नहीं कर सकते। ये विचित्र देश है, इसमें हर साल जितने लोग कोरोना से अब तक मरे हैं, इससे ज्यादा लोग हर साल मरते। स्वाइन फ्लू, डेंगू से लेके हर साल लगता है कि अब इससे बड़ी महामारी कोई नहीं आएगी। इस बार जो ज्यादा दिक्कत इसलिए हो गई कि हम यूरोप के रास्ते पर दौड़ पड़े। हम अपने कंपैरिजन, अपनी तुलना यूरोप के कंट्रीज से करेंगे। यूरोप का क्लाइमेट अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी फूड हैबिट अलग है। हम लोग जिस तरह से इकोनॉमी चलाते हैं, वहाँ की इकोनॉमी उस तरह की नहीं है। तमाम नोटबंदी के बावजूद आप सब लोग मानते हैं कि फिर लिक्विड मार्केट में जाता है। डीमोनेटाइजेशन इसीलिए तो किया गया था कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। फाइंडिंग है कि दोबारा फिर उतना ही लिक्विड मार्केट में आ गया जितना डिमोनेटाइजेशन का पहले था। तो ये भारत की यही स्ट्रेंथ भी है और यही वीकनेस भी है कि भारत न तो पूरी तरह यूरोप की नकल करके और न पूरी तरह वैदिक भारत बन के चल सकता है। इसमें अद्भुत क्षमता है अलग अलग सिचुएशन में सरवाइव करने का, और हम सभी भारतीयों के अंदर सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट बहुत है, क्योंकि हम जिस एडवर्स सिचुएशंस में
पैदा होते हैं, जिस एडवर्स सिचुएशन में ग्रो करते हैं, और जिस एडवर्स सिचुएशन में हम अपनी रोटी रोजी और अपने उद्योग धंधों को चलाते हैं, उस हाँ तरह जी। का सिचुएशन यूरोप और बाकी सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। अगर अपने ही आप सब कॉन्टिनेंट की देखें तो हाँ कोरोना का असर बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में भी कमोबेश उतना ही है, हमसे कम ही है जितना कि भारत में, क्योंकि भारत की हाँ आबादी जी। ज्यादा है तो संख्या में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमको यूरोप और अमेरिका से नकल करके अगर हम कोई भी चीज प्रेडिक्ट करेंगे तो हमको निराशा ज्यादा होगी, डिप्रेशन ज्यादा होगा। हाँ हमको हाँ अपने जो वैल्यूज रहे हैं, अपना जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम रहा है उस पर भी हाँ भरोसा करना चाहिए, और जो मॉडर्न इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। हाँ गांधी से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक या जवाहरलाल नेहरू तक दोनों चीजों की बात करते थे। न तो वो कहते थे कि रूरल इकोनॉमी को खत्म करिए, और न वो कहते थे कि अर्बन इकोनॉमी को सिर्फ प्रमोट करिए। वो हाँ दोनों में तालमेल बना के चलने की बात करते थे। एक तरफ गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की, तो दूसरी हाँ तरफ जी। पंडित नेहरू ने हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात की। हाँ और जी। इस कोरोना के क्राइसिस में वही पंडित नेहरू के बनाए हुए जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स थी, वही एक तरह से संकट मोचक साबित हो रही है। हाँ आप जी। हाँ देख जी। लीजिए, चाहे इंग्लैंड की भी जो हेल्थ सर्विसेज है वो पब्लिक सेक्टर सरकारी कंट्रोल्ड है, वही वहां इफेक्टिव नहीं। तो हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर तो एक तरह से पूरी तरह से इसमें असहाय दिखाई दे रहा था कोरोना के टाइम। हाँ जी। तो हमारे आपके देवी देवता छिप के बैठ गए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, और हमारे आपके जो रिच क्लास और नियो रिच क्लास था वो अपने अपने बंगलोज में गेट बंद करके अंदर बैठ गया। और हमारे आपकी जो वेस्टर्न इकोनॉमी थी वो भी अंतिम सांसें गिन रही है। हाँ कहीं निगेटिव ग्रोथ की बात हो रही है, कहीं कहीं जीरो प्लानिंग की हाँ बात हो रही है। हाँ जी हाँ। नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा। मेरे लास्ट दो प्रश्न हैं आपसे अभी, बाद में फिर हम जी ऑडियंस के पास जाएंगे पूछने के लिए। मेरा जो दूसरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही था मेरा, कि अभी कुछ प्रोजेक्शंस आए थे 1-1.5 महीने पहले IMF वगैरह के, ADB के, वर्ल्ड बैंक के। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 1.9% से ग्रो करेगा इस साल 2020 में, जनवरी से दिसंबर 2020 तक, और अगले साल 7.4% से ग्रो करेगा 2021 के अंदर, जनवरी से दिसंबर 2021। एक क्वार्टर जो है वो ओवरलैप होता है हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सिस्टम में। अब देखिए, आप तो ग्रो किए हैं, आप तो ग्रास रूट लेवल से, एक एग्रीकल्चर फैमिली से, गांव से निकल के आप आए हैं। आपने अलग अलग शहर देखे हैं, अलग अलग कस्बे देखे हैं, जर्नलिज्म के थ्रू देखे, काम भी किया आपने। तो आपको तो ट्रू पोटेंशियल जो है हिंदुस्तान का उसके बारे में पता है। और हिंदुस्तान तो अभी यंग देश है, 28 साल का, जैसे आप कह रहे थे। हम हर एक चीज को स्ट्रेंथ से लेते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। तो जब ये ग्रोथ फिगर जो बताई जा रही है IMF की, और मैं वर्ल्ड बैंक में काम किया 20 साल पहले, तो मेरे को मालूम है ये जो आंकड़े निकाले जाते हैं ऐसे एब्रप्ट नहीं होते, ये मतलब कहीं इसमें नहीं होते हैं, स्टेटिस्टिकली निकाले जाते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, हिंदुस्तानी को जानते हैं, उसकी क्षमता को जानते हैं, और किसान की क्षमता को जानते हैं, जो हिंदुस्तानी किसान है ज्यादातर, तो उसके अंदर ये जो फिगर है ये ऑप्टिमिस्टिक है आपके विचार में या कंजर्वेटिव है? नहीं, मुझे लगता है कि डूएबल है, इट माइट बी पॉसिबल। उसका हाँ हम एक उदाहरण देंगे, राज्य का नाम नहीं बताएंगे। अभी लॉकडाउन के पहले एक राज्य का पर मंथ का कलेक्शन था अलग अलग सोर्सेस से करीब 12,000 करोड़, हाँ जी। 12,000 करोड़। हाँ। लॉकडाउन के दौरान वो घट के हो गया था 1,200 करोड़। अच्छा। और फिर लॉकडाउन अभी अनलॉक जब हुआ है तो धीरे धीरे हाँ बढ़ के 5,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हाँ तो एकदम जहां ये एकदम फ्लैट हो गया था ग्रोथ और इकोनॉमी हाँ का, रिसोर्स का, वो फिर हाँ उतने ही तेजी से रिवर्स भी कर रहा है। तो हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडिया की एक विचित्र माने उनकी वो है बनावट है हाँ यहाँ के हाँ हाँ सिस्टम की, हाँ कि जी। जिस तेजी से नीचे जाते हैं उतने ही तेजी से बाउंस बैक भी करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक एसेट है इंडिया के ग्रोथ के लिए, हाँ क्योंकि हमारे पास आबादी ज्यादा है तो हमारे पास चीप लेबर भी है।
तो जो काम हम 5,000 रुपये खर्च करके करा सकते हैं, यूरोप के देश उसी काम को $5,000 खर्च करते हैं तो कर पाते हैं, अपने हाँ जी। एक मैन पावर है। तो वो भी एक तरह से एडवांटेज रहता है कहीं ना कहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। जो हिंदुस्तान की क्षमता है और हिंदुस्तानी की क्षमता है काफी अच्छी, और बाउंसिंग बैक फैक्टर बहुत अच्छा रहता है। मेरा जो लास्ट प्रश्न है आपसे वो ये है कि जो यूथ है हमारा, जो युवा वर्ग है, और उसके अंदर मैं कहूँगा 15 साल से लेके ऑलमोस्ट 35-40 साल तक के युवा मैं मानता हूँ उसके अंदर, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? स्पेशली इसलिए कि हम एक आजकल हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, हर एक चीज बहुत ज्यादा है हमारे पास, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे न्यूज हो, चाहे साधन लेने की क्षमता हो, चाहे साधनों का ऑप्शन हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने ये चीजें कर दी। और मैंने देखा जब मैं अमेरिका गया था तब भी बहुत ज्यादा चीजें मिलती थी। एक चीज लेने जाओ, ब्रेड लेने जाओ तो 50 टाइप की ब्रेडें मिल रही हैं। तो जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है यूथ के सामने, बड़ी ही खतरनाक विचित्र सिचुएशन है उसके लिए, और वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपने तो जिंदगी देखी है, लोग देखे हैं, तो इस मामले में आप यूथ के लिए क्या और स्टूडेंट्स के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? अमन जी, मैं तो पिछले करीब 30-35 ईयर से यूथ के बीच में ही काम कर रहा हूँ। हाँ जी, और हाँ मेरे जी, जो न्यूज रूम है उसमें यंग टीम ही रहती है ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, जो मैं फील कर रहा हूँ आज के यूथ में कि दे आर मच इम्पेशेंट, they are impatient, they are defocused, they are least aware about the history हाँ, and mythology। हाँ, ना तो माइथोलॉजी के बारे में जानते हैं ना हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए उनके हाँ, अंदर वो है एक तरह से डेस्परेशन है। हाँ जी, हाँ जी, और डेस्परेशन इज लीडिंग टुवर्ड्स फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन एंड हाँ जो जी, कि हाँ अभी जी, एक घटना हुई है हाँ, वहां पर, आप मुंबई में देखिए कि मुंबई में, हाँ यंग जी, हाँ जी, बडिंग फिल्म स्टार ने सुसाइड हाँ कर जी, हाँ लिया। जी। और एक हफ्ता पहले उनकी जो असिस्टेंट थी उनका भी ऐसा ही कुछ असर हुआ था, हाँ, अनफॉर्चुनेटली। तो हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हो रहा है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी मिलती हैं। हिस्ट्री से हाँ, हमको फाइट करने का तरीका पता चलता है हाँ, कि कैसे फाइट किया जाता है। हाँ, तो वो चीजें बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। दे आर मोर हाँ जी, कैरियरिस्ट, दे आर मोर हाँ जी, टेक्निकल, दे हम्म, आर मोर मेथोडिकल हाँ एंड जी, दे, उनका ही है कि जो जैसे होता था ना कि सेलेक्टेड पढ़ के और एग्जाम पास कर लेना, हाँ जी, हाँ तो जी, लाइफ को भी वैसे ही चलाना चाहते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन लाइफ जो है रिमोट से नहीं चलती है। करेक्ट, कहीं ना कहीं हमको, चाहे आप एथिस्ट हो या नॉन एथिस्ट हो, आपको एक चीज तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक कोई सुपर पावर है जो कि हमको आपको सबको कंट्रोल करता है, ठीक कह रहे यूनिवर्स हैं। को कंट्रोल करता है। हाँ जी, नाम हाँ आप जी, कुछ भी दे दीजिए, हाँ जी, साइंटिफिक टर्म में कोई और नाम दे दीजिए, और हाँ, माइथोलॉजी में आप कुछ और नाम दे दीजिए, लेकिन हाँ, देयर इज समथिंग स्पेशल हु हाँ, कंट्रोल ऑल ऑफ अस, हु कंट्रोल हाँ जी, यूनिवर्स। हाँ ये जी, आजकल का जो यूथ है वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ठीक कह दूसरा, रहे हैं। न्यूक्लियर सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली जब से आ गई है तो तब से बच्चों की उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हो रही। हाँ, बच्चे अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते। हाँ, पहले ज्वाइंट फैमिली में होता था कि बच्चे या यूथ अपने हाँ, ग्रैंडफादर से, अपनी ग्रैंड मदर से, या कुछ लोग अपने माँ से अटैच होते थे तो मन की बात हाँ, शेयर कर लेते थे। हाँ, अब बच्चे उन अपने फीलिंग्स को, अपने जो उनकी जो पेन और वो है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको अपने अंदर ही रखते हैं। करेक्ट, वर्क प्लेस पर शेयर नहीं कर सकते, उनको लगता है वर्क करेक्ट, प्लेस पर शेयर करेंगे तो अगला मिसयूज करेगा उस करेक्ट, इंफॉर्मेशन को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनको लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो पहले होता था कि देयर वेयर सो मेनी ऑप्शंस, कि जहां हाँ आप जी, हाँ अपनी जी, बात को कह लेते थे, अपनी फीलिंग को हाँ, शेयर कर लेते थे, मन हल्का हो जाता था। हाँ तो जी, वो हाँ जी, बहुत जरूरी है। मैं तो सबसे कहता हूँ कि चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, किसी भी सब हाँ, डिसिप्लिन का हो,
द पर्सन हाँ। मस्ट स्टडी हिस्ट्री। हाँ। हिस्ट्री और माइथोलॉजी दो ऐसी हाँ। चीजें हैं जो कि व्यक्ति को एक पूर्णता देते हैं। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होता है जब आप हिस्ट्री और हाँ जी। माइथोलॉजी को पढ़ते हैं। तो उसमें ठीक कह रहे अलग हैं। अलग एग्जाम्पल और स्टोरी टेलिंग रहती है कि राम हाँ। का कैरेक्टर क्या था, कृष्ण का क्या था, प्रॉफिट का क्या था, हाँ। जीसस का क्या था, किस हाँ तरह जी। से हाँ जी। जीसस ने फेस किया उस समय के सिस्टम को। सिस्टम तो हर दौर में ऐसे ही रहा है बिल्कुल ठीक कि कह रहे हैं। हाँ, कि जो सत्ता होती है वो हमेशा पुलिस स्टेट के रूप में ही काम करती है। हाँ जी। चाहे वो कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, लगभग कैरेक्टर तो सत्ता का एक ही होता है। ठीक कह रहे हैं। तो उसमें किस तरह से जीवन को बैलेंस करना है, किस तरह से आगे ले जाना है, ये तो हमको वहीं जाएंगे तभी मिलेगा ना, समझने को, पढ़ने को। हाँ जी। वो चीजें अब बुक्स भी उस तरह की नहीं आ रही हैं। पहले एजुकेशनल आती थी, हाँ। किताबें आती थी, या जो हाँ। गेम आते थे वो भी एजुकेशनल आते थे, जो बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता था, दिया जाता था खेलने को। अब वो बुक्स भी हाँ उस जी। तरह की नहीं लिखी जा रही हैं। हाँ। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उस तरह का कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट जरूर हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, अपने बिल्कुल यूथ ठीक के कह रहे साथ। हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हमारी हाँ। फैमिली में 4 लोग हैं। हाँ जी। हाँ जी। अब एक बहू भी आ गई तो 5 लोग हो गए। मेरे बेटे की शादी हो गई, वो भी प्रोफेशनल है, जो मेरी डॉटर इन लॉ है। हाँ जी। हम 5 लोग, हाँ जी। जब हाँ हम जी। 4 लोग थे तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक फैमिली ग्रुप बनाया था। अब उसमें 5वां भी ऐड हो गया है। तो हाँ। उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हाँ। माई डॉटर इज अ डेंटिस्ट, माई वाइफ इज अ टीचर, माई सन हाँ। एंड डॉटर इन लॉ बोथ आर बिजनेस जर्नलिस्ट। दे आर हाँ। वर्किंग इन हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू बिजनेस हाँ। लाइन। हाँ। तो हम कुछ नहीं करते हैं। हमने एक हैबिट डाल दिया कि हाँ। हम सुबह जब साथ में रहेंगे तो जो सुबह पहले उठेगा वो जो सामने दिखेगा उसको गुड मॉर्निंग बोलेगा, रात में गुड हाँ नाइट जी। बोलेगा। अगर हाँ। साथ में नहीं है तो रात में जहां भी हैं सोने के पहले हम व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। हाँ जी। हाँ जी। और ऑफिस में अगर हम हैं तो सब कुछ ठीक है, तब भी एक बार हम हाँ। दोपहर में मैसेज डाल देंगे कि आई हैड माई लंच हाँ। एंड आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ठीक कह रहे हैं। बस हम ये भी नहीं पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन वो हाँ। इम्प्लाइड है। बाकी लोग फिर उस पर रिप्लाई डाल देते हैं। ठीक कह तो रहे हैं। हम सब लोग एक दूसरे के से अपडेटेड रहते हैं। उसमें होता हाँ। ही है कि अगर मन में कभी कोई उस तरह की फीलिंग आती भी है, हल्का सा, कि अकेलापन है या कोई है, या कोरोना को लेके ही दिन में कई तरह के मन में भाव पैदा होता है कि जब तक आप काम में हाँ। बिजी हैं तब तक तो कम डर लगता है, जब हाँ। काम से आप खाली होते हैं तो ज्यादा डर लगता है। टीवी देखिए हाँ तो जी। और हाँ जी। ज्यादा डर लगता है। टीवी हाँ देख जी। के तो और लगता है कि फिर अब तुरंत इस दुनिया को ही छोड़ के जाने लायक है, कि पता नहीं बिल्कुल कोरोना ठीक कह बगल रहे में हैं। खड़ा है। हाँ जी। तो हाँ जी। इतना नेगेटिविटी है आसपास, उसके बीच में अगर हम लोग खाली फैमिली ग्रुप बना लें और कुछ ना हाँ। करें, व्हाट्सएप खाली इतना हेलो हाउ आर यू बस दिन में 2 बार हाँ। डाल दीजिए, उसी से हाँ। बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ। बच्चों को एक हैबिट में आ जाती है कि अच्छा हमको रात में अपने पेरेंट्स को गुड नाइट बोल के सोना है। ठीक कह रहे हैं। या सुबह हमने मान लीजिए 6 बजे डाला, बच्चे ने 9 बजे रिस्पॉन्ड किया, तो इसका हाँ जी। मतलब बच्चा 9 बजे सो के उठा है, 6 बजे नहीं हाँ। जगा है। हाँ। हाँ। आप समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल एक ठीक कह तरह रहे से हैं। आप पुलिसिंग भी कर रहे हैं, आप उसको डिसिप्लिन में भी रख रहे हैं। हाँ जी। हाँ बगैर जी। बोले, जैसे होता है ना, हाँ। किसी चीज को कहिए कि सच बोलो तो अगला हाँ सच जी। नहीं हाँ जी। बोलेगा, और हाँ जी। उसको ये मत कहिए कि सच बोलो, उसको कहिए कि हाँ। नहीं जो बोलना है वही बोलो, तो ठीक वो कह रहे आपसे हैं। झूठ नहीं बोलेगा। ठीक कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये ठीक कह रहे कुछ हैं। चीजें हैं जो हमने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस किया, और हाँ। मुझे लगता है कि हर यूथ को इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है वही कल हेड ऑफ द फैमिली होगा, बिल्कुल ठीक और कह रहे उसी हैं। के जिम्मे सोसाइटी और देश की बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी है आएगी। हाँ जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो संजय जी, अब मैं जो है और लोगों के पास जाऊंगा, देखता हूँ काफी तो नहीं रह गए यार, देखता हूँ कौन कौन है अभी।
अगर कोई ऑडियंस में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वशिंद्र मिश्रा जी से, तो अपना हैंड रेज कर दें ग्रुप में वहाँ पे, ताकि मैं आपका खोल सकूं ऑडियो। करना चाहते हैं तो फिर मैं अपना हाथ रेज कर दें प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल, आप पूछना चाहते हैं कुछ? हेलो प्रोफेसर अग्रवाल, अगर आप अपने आप को म्यूट कर लें जरा। प्रोफेसर अग्रवाल, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें 1 सेकंड के लिए। हाँ, अब ठीक है जी, अब आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आपका आवाज हल्का सा जोर से बोलेंगे प्लीज। मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। हाँ जीवन के संपूर्ण जो लक्ष्य है, इसेंस है, उसको उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है हाँ और जी। उससे शिक्षा ली जा सकती है। इसके साथ साथ ये जरूरी है, मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपने लाइफ के इसेंस को देखते हैं, अल्टीमेटली पूरी मेहनत के साथ सब कुछ करने के बाद हम 2 बातों पर पहुंचते हैं कि हम या तो पीस चाहते हैं ज़िंदगी में, या हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हाँ हैं। जी। हाँ जी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने से खुशी मिलेगी, कभी सोचते हैं कि शायद स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने से पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। हाँ जी। एक व्यक्ति का अपना एक तरीका है सोच का और वो रास्ता अपनाता है, लेकिन अल्टीमेटली मृत्यु से पहले वो यही चाहता है कि उसके जीवन में, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कि शांति रहे और खुशी से इस संसार को छोड़ करके बाहर जाए। हाँ जी। तो इसके लिए ये जरूरी है कि अगर जब हमें अल्टीमेटली पीस, शांति और हैप्पीनेस अर्थात खुशी, इसी को परस्यू करना है अल्टीमेटली, तो हम पूरे जीवन भर, चाहे वो 60 साल का व्यक्ति हो, 70 साल का हो, 90 साल का हो, उसको हम इतना डिस्टर्ब क्यों करें। इसीलिए शायद ज़्यादातर लोग कोई ऐसा काम जो कि अनलॉफुल होता है हाँ जी। या इलीगल होता है, जिसे पीस और खुशी डिस्टर्ब हो सकती है, वो नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। शायद उनका हाँ। जो ध्येय है वो कुछ अलग होता है और उस ध्येय की वजह से रास्ते से भटक जाते हैं। जीवन जीने का नाम है, इसको जीना है हमको अच्छे तरीके से। इसमें कार्य भी करना है और राष्ट्र के लिए भक्ति भी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं और हमें ह्यूमन बनना है। और हाँ जी। जो गरीब है, मुझे एक बात याद आती है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, समय निकल रहा है। मुझे विवेकानंद जी का एक कोट बहुत याद आता है, और वो उन्होंने लिखा था कहीं पर कि each one of us is a traitor who has been educated at the cost of poor and downtrodden, but do not pay any heed to them. I think what is needed is that since we've been educated, we have become prosperous, we have grown, we are very happy with whatever we have. We need to equally pay the heed to those of our countrymen or the inhabitants of this world who are poor, who are downtrodden, who are not able to afford even one meal a day, who do not have a roof on their head, and who do not even have a glass of water comfortably to drink. I think that probably is the crux what Swami Vivekananda spoke. Thank you very much for giving me an opportunity
to share my views on the subject. Thank you, Professor Agarwal. वसंत जी कुछ आप कहना चाहेंगे? जो प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा उसके कुछ आपके नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं पूरी तरह से एंडोर्स करता हूँ प्रोफेसर अग्रवाल की बातों को, स्वामी विवेकानंद जी की। और ये बात सच है कि अगर हम समाज के उस हिस्से के चिंता नहीं कर रहे हैं जो कि जिनकी की कड़ी मेहनत और जिनकी कड़ी उससे हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, तो हम उनके साथ नाइंसाफी करते हैं। और मैं एक और बात हमेशा कहता हूं कि आप कार्ल मार्क्स को भले ही पसंद करिए या नापसंद करिए, लेकिन कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है कि दो ही क्लास है, एक वो जिनके पास सब कुछ है और एक वो जिनके पास कि कुछ नहीं है। और जिनके पास सब कुछ है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो डिप्राइव्ड हैं उनको भी एम्पावर करें, उनको भी इनरिच करें, उनको भी बराबरी में ले आए। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करें। तो मार्क्स हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या गांधी जी हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जितने भी लोग रहे हैं अलग अलग दौर में, सबका कोशिश यही था कि सामाजिक जो गैर बराबरी है, आर्थिक विषमता है, उसको किस तरह से कम किया जाए। और तरीका चाहे जो अपनाइए, लेकिन जरूरी यही है कि जो गैर बराबरी है, सामाजिक गैर बराबरी, उसको दूर किया जाए और जो इंसान है उसको इंसान के रूप में देखा जाए। उसकी आर्थिक स्थिति से उसका मूल्यांकन न हो, उसका अप्रेजल न हो, उसको एक इंसान की तरह से देखा जाए, इंसानियत की नजर से, और इंसानी मूल्यों के आधार पर उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो व्यवहार की हम लोग अपने साथ अपेक्षा करते हैं दूसरों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है इंसान के लिए कि जो है वो ये सब मापदंड लेके चले ताकि खुशहाल जिंदगी रह सके, खुशी ला सके अपनी जिंदगी में और चीजें कर सके। अगर कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं, someone else wants to ask a question, we will have him for another 2 minutes or so. Otherwise, I will close the session for today. I see a couple of head of the departments and I see one vice chancellor also here. I would request if he has a question then he can ask. Otherwise, I will close the session for today. मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा वसंत जी, आपने समय निकाला और हमारे समक्ष आप आए। और मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि आगे हमारे पास क्या हमने शेड्यूल कर रखा है। मैं 1 सेकंड लूँगा वसंत जी, उसके बाद फिर मैं बंद करूँगा सेशन को। मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हमारे यहाँ कल परसों जो है मिसेस अनु सिन्हा आएंगी, जो कथक डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, मिस्त्रो हैं और डिसाइपल हैं गुरु महाराज हरीश चंद्र रावत और पंडित राजेंद्र गंगवानी जी की, और फाउंडर हैं कृष्णा कला फाउंडेशन की। वो हमारे समक्ष होंगी 17 तारीख को। और कल जो है हम लोगों ने एक वेबिनार रखा हुआ है वैल्यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, जिसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, हाउ कैन यू इन्वेस्ट, हाउ कैन यू गो अबाउट इन्वेस्टिंग, ग्रोइंग योर वेल्थ, और कैसे कैसे करना है। उसके लिए हमने जो है समक्ष में हमने लोगों को अलग अलग जगह से बुलाया हुआ है, जिसमें यूएसए से भी हैं, हांगकांग से भी हैं, यूएई से भी हैं और हिंदुस्तान के भी काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। एंड सो वी हैव कॉल्ड देम हु आर गोइंग टू बी स्पीकिंग टुमारो। पोर्टुगल से भी हैं जो कल बोलेंगे 16 तारीख को 6 से 8 बजे तक। और जो आना चाहें, अटेंड करना चाहें, ये बिल्कुल फ्री सेशन है, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए। आप आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। हम अब तक जो है 95 वेबिनार ऑर्गेनाइज कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, और करीबन 4,500 लोग बेनिफिट ले चुके हैं हमारी वेबिनार्स का। वैसेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आना चाहे आ सकता है, अटेंड कर सकता है, बिकॉज हम चाहते थे कि पॉजिटिविटी आए एनवायरनमेंट में, नेगेटिविटी ना रहे। उतार चढ़ाव एक इंसान की जिंदगी के पहलू हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर एक पॉजिटिव आउटलुक जो है देखना बहुत ज़रूरी है। इसी को करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वसंत मिश्रा जी का, जो हमारे समक्ष आज रहे। उन्होंने अपने विचारधारा रखी और हमें जो है जागरूक किया चीज़ों के बारे में।
धन्यवाद विजेंद्र जी। Thank you, Aman ji. Thank you very much. And I Jai am Hind and extremely Vande sorry Mataram. for joining late. Thank you. No, not Thank a you very problem much. ji. Okay. No problem. Jai Thank Hind, you. Vande Mataram. Namaskar. Namaskar.